Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. I was discussing electrocardiographic leads for the recording of electrocardiogram, where we put the leads on the body and what are leads we were talking about. So before that one ayah from Holy Quran as per my routine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. ये सूरह अन-नमल की आयत है कि जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं रखते, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, जिनको अपनी क़यामत पे ईमान का क्या मतलब है? जवाबदेही। हमने हर अमल का जवाब देना है, एक आखिरत आने वाली है, हमने हर अमल का जवाब देना है, उसके मुताबिक हमारी उखरवी ज़िंदगी का फैसला होना है। तो जो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके अमाल को खूबसूरत करके उनको बना के पेश कर दिया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? जीनतदार कर दिखाए हैं उनके करतूत, उनके काम, जो भी वो काम करते हैं, हो बड़ा कमाल कर दिया मैंने, ये बड़ा अच्छा है, ये काम बड़ा अच्छा है। वो सारी गंदगी में मुब्तला होते हैं और खुश हो होते हैं कि बड़ा आला काम कर रहे हैं, बस वो भटकते फिरते हैं, वो अंधे हुए पड़े हैं। और फिर इन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने दूसरी आयत कि उलाइकल्लज़ीना लहुम सूअल अज़ाब, इनके लिए बड़ा बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, इन लोगों के लिए आखिरत में बहुत ही खसारे वाली बात है। तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we were talking about the electrocardiographic leads. This diagram is showing you the partially depolarized heart, and current is flowing from the depolarized area to the polarized area. And lead is a pair of electrode placed on two sides of the heart, and we record it. So the standard leads, we record 12 electrocardiographic leads, which we have talked about in the previous lecture. So this is partially depolarized heart, and current is passing in this direction. Say, this is the resultant vector of all the currents is in this direction. ये जो red arrow मैंने यहाँ पे draw किया, this one, this arrow जो draw किया, this one. So this vector goes on changing. If this part is depolarized, vector will be of this magnitude and direction will be this, and some more part is depolarized, vector elongation, current ज़्यादा हो गई है और direction भी change हो गई है. When this ventricle is only small part is left polarized, so the vector will be in this direction. Now this vector is in that direction because current is flowing in that direction. So the last part 5 is no current is flowing. So this vector goes on changing. So we take the mean, हम ये वेक्टर चेंज हो रहता है लम्हा बलम्हा, इसको हम वेक्ट्रोकार्डियोग्राम में फिर देखेंगे कि ये क्या होता है. So connection of bipolar leads, ये भी स्लाइड हमने लास्ट टाइम देख ली थी कि where do we connect. Lead 1 is right arm और left arm के दरमियान में कनेक्शन है, right arm and left arm में दरमियान कनेक्शन है, इसको हम आगे फिर दोबारा आ रही है. And lead 2 is recorded from potential difference between the left leg and right arm और left leg, ये वाली लीड पैदा होती है, this one. So lead 2 is this one and lead 3 is this one. So and lead 3 is recorded from the left arm and left leg. This is left arm and left leg. This is lead 3 and Thoman triangle में. So here we were talking about axis of the bipolar leads. Axis की बात की थी. Axis क्या होता है? Direction of from the negative to positive. In any lead, direction from the negative to positive electrode is called the axis of that lead. ये lead हमने देखें, for example this is lead 1, उसी Thoman triangle जो हमने last time बात की थी. This is lead 1, negative to positive. This will be the direction. This will be the axis. Axis is from this right side to left side. अगर मेरी बॉडी पे देखें, from the right side to left side, from right arm to left arm, this is taken as 0 degree. इसको हम 0 degree पे हम ले लेते हैं. And so this is the axis of the lead 1, and this is the axis of lead 2. From negative to positive, lead 2 का axis ये, and lead 3 का axis ये है, from negative to. तो these 3 leads हम इसको यूं कर लें, हमने इसको यूं कनेक्ट किया. Bipolar limb leads को हमने यूं करें. This is the axis from right to left, and this is from downward, and this is from downward. Now
So now I am going to push these leads to common intersecting point. Lead की डायरेक्शन वही है, लेकिन इसको मैं जरा चेंज कर रहा हूँ. आइंथोवन ट्रायंगल बनाने के बजाय I am pushing the leads to common intersecting point. This lead 1 डायरेक्शन वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा. And this is lead 2, इसको चेंज किया है. नाउ दीज टू लीड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, हैंड डायरेक्शन वही है ट्रायंगल बनाने के बाद. एंड लीड 3 को भी मैंने आई हैव पुश दीज लीड्स टू द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. ये भी लीड्स कौन, ये लीड 1 and 2, ये दिस इज लीड 1, दिस इज लीड 2, दिस इज लीड 3. दिस इज एट 0 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और ये 210 डिग्री. आगे हम देखेंगे कितनी, नहीं 110 डिग्री पे है, 90 इधर होता है 110 डिग्री पर. सो ये लीड्स की, इन लीड्स को यूं भी रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ ये जो पिछली डायग्राम में मैंने जल्दी से मैं वापस जाता हूं इस जगह पे, ये जो मैं बात कर रहा था, एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार्डियक दिस इज करंट इज फ्लोइंग, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है. इस वेक्टर को हम, इनमें से एक वेक्टर को, से दिस वेक्टर को हम उठाते हैं. इसको देखते हैं कि हाउ मच, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना. रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ मैनी वेक्टर्स. इन वेक्टर्स में लीड 1 पे कितनी रिप्रेजेंटेशन है, कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा. लीड 2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा, और लीड 3 की डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा, इसको हम देखते हैं. तो ये 3 लीड हमने इंटरसेक्ट करके हम यहाँ पे देख ली. ये सूरत हाल होगी लीड 3 की. अब इनको, यही वो 3 लीड हैं, लीड 1 एंड लीड 2 एंड लीड 3. एंड एक कंपोनेंट वेक्टर वो है जो हमने कहा कि फर्क करें उनमें से एक इंस्टेंट पे करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसका डायरेक्शन ये है 0 डिग्री. ये 0 डिग्री है, और इसको आप कह ले से कितना होगा, 60 डिग्री है. 60 डिग्री में फर्क कर लेता हूँ, 60 डिग्री. रिजल्टेंट वेक्टर तो ये है, लेकिन इसमें से अगर हम देखना चाहें कि लीड 1 में इसमें से इसका कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा, लीड 2 में इसका कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा, लीड 3 में इसका कंपोनेंट वेक्टर कितना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर से, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लीड 1 पर. ये परपेंडिकुलर ड्रा किया लीड 1 पर, तो ये पॉइंट आ गया. अब इसको हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला दिया. अब इसको देखेंगे ये किस तरफ जा रहा है, इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव, सो इट इज विल बी पॉजिटिव वेव. अपवर्ड डिफ्लेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन लीड 1 ऑफ दिस मैग्नीट्यूड. इतने, कितने मिलीमीटर, कितने खाने, ईसीजी के खाने में हम देखेंगे कितने खाने ऊपर नीचे. सो इट विल बी प्लस की तरफ जा रही है, इट इज द प्लस वेव. लीड 1 में प्लस वेव इतनी बड़ी होगी. लीड 2 को उसी तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इतनी बड़ी, इतनी. लीड 3, what will we do? We will draw perpendicular from the tip of this vector to the axis of the lead 3. It will touch here, and this will be a small vector representation of this vector in this lead 3 will be only this, and again it is a +1. And this is the recording of 3 bipolar limb leads. से उसी को हम अप्लाई करें. When it is completely at the top of the ventricular depolarization here, this much deflection is noted in the lead 2, this much deflection in the positive direction is noted in lead 3, and lead 3 में इतना recorded है. So that's how at an instant how much what will be the component vector of the resultant vector in different leads. इसको हम आगे भी elaborate करेंगे और इंशाल्लाह ताला. So these were the bipolar limb leads. Bipolar limb leads हमें इलेक्ट्रोड इधर और इधर रख के, और 3 ये जो 6 जगह हमने देखी इलेक्ट्रोड रखने की. Now another type of leads, so 12 leads electrocardiogram में there are 6 chest leads. They are known as chest leads. वो बनाते कैसे हैं chest leads? These are the 3 arms जो हमने इस्तेमाल किए bipolar limb leads में, 2 arms and 1 left foot. Same points are उसी जगह पे connect करके we pass the current through 5000 ohm resistance. इन तीनों को मिलाकर we make, ये तीनों को मिलाकर we have made this one इलेक्ट्रोड. इन तीनों इलेक्ट्रोड को मिलाकर
हाई रेजिस्टेंट से गुजार कर द करंट विल बी जीरो। जब इसको रेजिस्टेंस से गुजारा इसमें करंट विल बी जीरो, दिस विल बी indifferent electrode, and another electrode will be placed at different positions in the on the chest, and this is one electrode and this is recording electrode. This is indifferent electrode and recording electrode we will place on the chest and we will record it. So this will be chest leads. So indifferent one electrode हम कैसे बनाते हैं, इन तीनों leads को मिलाकर zero potential पे ले आते हैं after passing through these resistance, हम सबको गुजार के this तीनों को मिलाकर एक indifferent electrode बन गया, और probing electrode, recording electrode we will place in different position on the chest, and हम 6 जगहों पे रिकॉर्ड करते हैं आमतौर पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में. So it will be these will be chest leads. अब chest leads हम रखते कहाँ पे हैं? The placement of these chest leads. This is chest. इसके किस किस जगह पे हम chest lead रखेंगे? Chest leads को we denominate किस नाम से रखते हैं? V1. V1 is the one chest lead, and we place it in the fourth intercostal space on the fourth intercostal space near the sternal border. ये sternum के border के पास ये this is fourth intercostal space, sternal border के पास हमने इसको रखा हुआ है. So this is the lead 1, V1. This is known as chest lead V1, and then V2, it is on the opposite side, left side के fourth intercostal space and the sternal border के साथ साथ. And then between this V3 is between V2 and V4. V4 हम प्लेस करेंगे उनके दरमियान, V4 को हम अगली जगह पे आ रहे हैं, V2 और V3 के दरमियान जो जगह बच जाएगी that will be lead 3. तो V4 कहाँ पे है? V4 is fifth intercostal space. This is fourth, this is fifth intercostal space. कहाँ पे? मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल से एक लाइन ड्रा करें, क्लेविकल से एक लाइन ड्रा करें, और फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस को जहाँ पे वो टच करती है, जहाँ पे दैट विल बी दी प्लेसमेंट ऑफ द फिफ्थ lead, that is V5 will be placed, V4 will be placed there, and V5, that black one, that is again in the fifth intercostal space, anterior axillary line, axilla के anterior axillary line जहाँ टच करती है, क्रॉस करती है फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस को, that will be the V5, and V6 is the fifth intercostal space in mid axillary line. Axilla के mid axillary line नीचे ड्रा करें तो जहाँ पे fifth intercostal space. So these are the 6 precordial leads भी कहते हैं, chest leads भी इनको कहते हैं, इनको हम प्लेस करते हैं. So this is the V6, fifth intercostal space in the mid axillary line. That's how we place it. So these electrodes have been placed on these 6 positions to record the precordial leads. इसको हम देखेंगे what is the importance of this. That is, ये lead 1 कहाँ से record करी? Lead 1 is placed in the fifth intercostal space on the right side. ये right side पे हम record कर रहे हैं. तो हम देखते हैं current is going away from this lead. इसको हम आगे elaborate करेंगे. So these are the 6 positions. So on in lead V1 में हमने इलेक्ट्रोड कहाँ पे प्लेस किया था? In the fourth intercostal space on the right side. Right side पे the preponderant direction of the predominantly direction of the flow of the current is toward the left. And downward वो 59 डिग्री हम आगे देखेंगे 59 डिग्री होते हैं. तो हम राइट पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट लेफ्ट को जा रही है, वी आर रिकॉर्डिंग ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड. तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड से अवे करंट जा रही है, दैट्स व्हाई द रिकॉर्डिंग इज अपोजिट. इसमें जो मेन कॉम्प्लेक्सेस बने हैं दे आर अपोजिट. V1 में भी, V2 में भी, V3 में सीधा होता है, V4 में बिल्कुल सीधा हो गया, V5 एंड V6 में. बिकॉज जब हम लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जब रिकॉर्ड करेंगे करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड दैट इलेक्ट्रोड, लेकिन राइट साइड पे जब हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस. तो अवे फ्रॉम द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड अगर करंट जा रही हो, नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड. दिस V1 एंड V2, V3 में भी किसी हद तक, V1 एंड V2 में तो इट इज रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड से दूर जा रही है करंट.
So that's why इनमें complexes opposite बनते हैं. So these are 6 chest leads. 3 bipolar limb leads और 6 ये leads आ गए. These are 9 leads. अब 2 leads और रह गए. They are known as 3 leads more. So they are known as unipolar augmented limb leads and they are named as AVR, AVL, AVF. उसको हम elaborate करते हैं. AVR कब होगी? AVR इसमें हम कैसे करते हैं? Probing electrode, recording electrode will be placed on right arm. वही right arm पे हम right arm पे हम probing electrode जब place करेंगे, this is right arm. Probing electrode यहाँ पे करेंगे और बाकी 2 electrodes को हम गुजार के indifferent electrode बना देंगे. Precordial leads में तो तीनों को मिलाकर हमने indifferent electrode बनाया था ना. यहाँ पे रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जिस आर्म पे या जिस लिम्ब पर रख रहे हैं, लिम्ब लीड्स हैं, जिस लिम्ब बाकी 2 लिम्ब्स को मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बना लेंगे. AVR विल बी positive electrode will be placed on the right arm and the other 2 limbs will be connected and together as indifferent electrode. And AVL, positive electrode will be placed on the left arm and the 2 other will be joining together, will be forming the indifferent electrode. And AVF, that is the AVF will be the positive electrode will be placed on the foot or here, and the other 2 electrodes, the upper and both arms will be connected together, will be forming. So you see what is happening when we record from here. AVR, we are recording from this side and current is flowing away from this. So the complexes, the major recording should be in the opposite direction, in the downward direction. So these are AVR, AVF, AVL और इसकी recording देखें, ये AVL है और वो AVF है. This is AVR recording. Now here you can see the complexes again. The QRS complex is opposite. इसमें P wave भी opposite होती है और T wave भी opposite है. All the major waves are in the opposite direction. We are recording from the right arm, you see. We are recording from the right arm. This is probing electrode, recording electrode, positive electrode. हमने यहाँ पे रखा हुआ and it is going away from this. Recording electrode से away current जाएगी, downward deflection will be recorded. So here, so the most of the complexes, most of the waves in AVR are in the, and L पे ठीक हो गया. इस डायरेक्शन में है तो एल में है और एफ पे तो है ही, सीधा हो जाता है. इट इज डाउनवर्ड है तो इट इज तो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स. तो ये 12 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स आर देयर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी जो हम रिकॉर्ड करते हैं. इसको हम रेफरेंस, ये जो हमने लिम्ब लीड्स को हम रिप्रेजेंट किया, द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमने किए. दिस इज लीड 1 एंड दिस इज लीड 3 एंड दिस इज लीड 2. 60 डिग्री पर लीड 2 है, 120 डिग्री पर लीड 3 है और 0 डिग्री पर लीड 1 है. AVR, AVL, ये AVR है. वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम हेयर एंड किस डिग्री पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 210 पे, 210 डिग्री पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. और AVF में वी आर रिकॉर्डिंग हेयर एट 90 डिग्री पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. इधर अब यू कैन इमेजिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाउनवर्ड है तो 90 डिग्री पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. और AVR जो है वो तो देख लिया. AVL का, AVL में अवर recording electrode is here, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. So these limb leads के जरिए से 3 bipolar limb leads and 3 augmented limb leads को हम common intersecting point पर ये जो हमने बनाया है इसको कहते हैं hexa axial wheel और hexa axial system. ये है क्या? वो भी hexa axial heart में देख रहे हैं कि that is AVF is looking at the heart from this point and AVR is looking at the heart flow of the current को हम देख रहे हैं, flow of the current from here, जिस जगह से देख रहे हैं. So the 6 limb leads monitor the same cardiac activity from 6 different angles. ये different angles से देख रहे हैं and when they are pushed to common intersecting point, the full circle of the reference to evaluate the cardiac function, this is known as
हेक्सा एक्सियल व्हील, ये जो 6 लीड्स ने क्रॉस करके ये जो व्हील सा बन गया है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसमें समझने की बात क्या है कि ये 12 जो इलेक्ट्रोड हमने प्लेस किए हैं डिफरेंट एंगल से, पूरे हार्ट के अराउंड से, दे आर लुकिंग एट द हार्ट, दे आर रिकॉर्डिंग द कार्डियक एक्टिविटी फ्रॉम दैट एंगल, उस एंगल से कर रहे हैं। अब जब हम AVR की बात करें, अगर यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज करंट इज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो वो इसकी करंट इससे दूर जा रही है, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन विल बी रिकॉर्डेड मोस्टली इन द लीड। सो दिस इज द एक्सा एक्सियल सिस्टम, और वो 0 डिग्री वाला लीड 1 भी देख लें, और 60 डिग्री वाला लीड 2 भी देख लें, और लीड 3 भी 2, 10, 110, 20 डिग्री वाली, और AVR, AVF और AVL। नाउ टिपिकल ECG हम 12 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम थे, जो हम 12 लीड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के, तो टिपिकल V1 आम तौर पर V1 सॉरी बाइपोलर लिम्ब लीड 1 जिसको कहते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सेस ऐसे रिकॉर्ड होते हैं। ये लीड 2 की रिकॉर्डिंग है, दिस इज लीड 3 की रिकॉर्डिंग है। AVR की रिकॉर्डिंग अपोजिट है, देखें इसके जस्ट अपोजिट। बड़ा भी हो गया, बड़ा इसलिए हुआ है कि अगमेंटेशन हो गया, बाकी दो को हमने इकट्ठा करके इसकी करंट को अगमेंट कर लिया है, अगमेंटेशन हो गया। सो ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, P वेव या नजर नहीं आ रही, P वेव भी अपोजिट है, QRS कॉम्प्लेक्स भी अपोजिट है, और T वेव इज आल्सो अपोजिट। और AVL में देखें, ये P वेव ठीक है और QRS कॉम्प्लेक्स ठीक है, T वेव भी सीधी हुई है, कभी कभी T वेव इसमें भी उल्टी होती है। एंड AVF में दी कॉम्प्लेक्स सारे ठीक है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो दीज आर दिस इज दी रिकॉर्डिंग फ्रॉम दी हार्ट में भी देख लें, इफ वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम राइट साइड, जो लीड्स हमारी राइट साइड पे हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस QRS कॉम्प्लेक्स अपोजिट साइड पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो होती है। एज वी मूव टुवर्ड दी लेफ्ट साइड पे जितने जाते जाएंगे डाउनवर्ड, जितने जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सेस सीधे होते जाएंगे, और मैक्सिमम आप देखें V4 में रिकॉर्ड हो रहे हैं आमतौर पर। सो वो V4 में तब होगा जब एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो लीड होगी ना, उसमें मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होगी। लिम्ब लीड्स में भी हमने देखा, लीड मैं जरा सा वापस जाके आपको समझाता हूँ, ठहरे। लिम्ब लीड में लीड 2 जो है, दिस इज लिम्ब लीड में लीड 2 जो है, दिस इज लिम्ब लीड नंबर 2, दिस इज लिम्ब लीड 2, और कार्डियक एक्सिस भी मेनली इसी डायरेक्शन में है। इसलिए बाइपोलर लिम्ब लीड्स में बड़ी रिकॉर्डिंग हमारी इसमें होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। वो दूसरा ये 60 डिग्री है, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस 59 डिग्री पे होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, उतनी रिकॉर्ड सारी रिप्रेजेंटेशन होती है उस जगह पर। So this is typical ECG, and इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसी ECG की इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इससे हम रिजल्ट कैसे ड्रा करते हैं। कुछ तो हम रिजल्ट हम डिस्कस किए ना कि करंट फ्लोइंग, इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरप्रिटेशन जो है हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन तो आप आगे देखेंगे, कुछ हम आगे भी बात करंट ऑफ इंजरी वगैरह हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड होप कि आपको ये समझ आएगी। अगर कोई बात क्वेरी रह जाए तो you can ask in the comment section, and thank you very much. Hope to see you in next video inshallah.